స్వయంగా ప్రధానమంత్రి మమతా బెనర్జీ గారిని పట్టుకొని మరొకసారి ప్లే చేయవా బాబు. आज भी बीवी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है आज भी. అంటే తల్లిదాయమైన పిల్లలు బతుదా అన్నట్టు దేశ ప్రధానమంత్రి డైరెక్ట్గా మమతా బెనర్జీ గారిని పట్టుకొని మీ 40 మంది ఎమ్మెల్యేలు నాతో టచ్లో ఉన్నారంటే ఏం టచ్ అసలు? ఈ టచ్ ఏంది నాకు అర్థం కాదు. ఇవి ఎక్కడ దిక్కుమాలిన టచ్లు, ఈ సంపర్కులు ఏంటి, ఈ టచ్లు ఏంటి? ఇది రాజ్యమా, రాజకీయమా, ప్రజాస్వామ్యమా? కొన్ని ఇదే విధానం అయితే ఇంకా ఏం తెచ్చింది ఇక్కడ? నాకు అర్థం కాదు. ఏం మిగిలి ఉన్నది ఈ దేశంలో? ఈయననే ఇట్లుంటే ఈయన కింద ఉండేటువంటి నాయకులు ఏం చేస్తారు ఈ పని చేయకపోతే? ఆవు చేనులో మేస్తుంటే దూడ గట్టున మేస్తుందా అన్నట్టు ఏం జరుగుతుంది అనుకోవాలి మనం. ఇది వినండి మీరు, 4 ఎపిసోడ్లలో ఉంటుంది. Because see, me discussing is different, you discussing is different. Same. Sir committed me that we need to get some delivery from here. Then we'll shift into Delhi. That is what we discussed, right? The same we discussed earlier. They have sent a message. They are here already. So I'm waiting for the message. Discuss the figure also openly. No, there is 50 each. Yeah. 50 each. 50 crores. I think discuss. He sent a message. If he sent a message to Deliver here. We have, you know, there is 5 other people also. I told him. నెక్స్ట్ మీకు ఎక్కడ డెలివరీ ఆ బ్లూ కలర్ సెట్ వేసుకున్న పేరు రామచంద్ర భారతి. అదే ఫేక్ ఐడియా మీకు ఇస్తున్నారు. ఇంకో ఆయనేమో సింహయాజీ అని తిరుపతి మఠాధిపతి అని చెప్తాడు. ఇంకో ఆయనేమో ఇక్కడ హైదరాబాద్ బ్రోకరు. మీకు తెలిసిపోయింది అది ముగ్గురు వాళ్ళు. ఎగ్జాక్ట్ రైట్ నంబర్ నెంబర్ రైట్ ఓన్లీ రైట్. And then more things అడిగినా పొలిటికల్ అష్యూరెన్స్ ఏం అడిగినా మాకేమడిగినా సేమ్ మా ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ బీ ఫండ్స్ వాళ్ళే ఇవ్వాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ బిఫోర్ ఎంట్రింగ్ టు దేర్ ఫ్రమ్ యువర్ పార్ట్ యూ షుడ్ బి క్లియర్ అండ్ ఫ్రమ్ అవర్ పార్ట్ వీ షుడ్ బి క్లియర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఈ ఫారం ఆఫ్టర్ ఎంట్రింగ్. That is the first thing we need to assure. See, in BJP there are 3 persons who are handling exactly. One is all are national. State don't handle anything. National handles. One is B.L. Santosh. Second, Amit Shah. Third, J.P. Nadda. What about students? Yeah, it's not ఇంత in ఓపెన్ గా చెప్తారు. ఎవరెవరు దీనికి ముఠాల దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు బిఎల్ సంతోష్, అమిత్ షా, జేపీ నడ్డా, ఇంకో పేరు చెప్తారు. ఇంత ఓపెన్గా ఏం జరుగుతుంది ఈ దేశంలో? ఏమనుకోవాలి మనం? పెట్టారు. Yes, the decisions is not done by PM is looking after everything and he will get updates from every point. We have them under work under PM. Yes, there is no there is no communication gap between them. There are agreements together, they will order. There is a discussion in the society that RSS is different and BJP is absolutely different. See, RSS is a socialistic working organization. BJP is a political party. కానీ ఏసీ గారు బండి చాలా ఎక్కువైపోయింది. BJP is a political party. RSS is a political party. RSS is a organization. But bracket. But every BJP person is having backend of RSS. Even PM. Yeah, PM is RSS. RSS is RSS. From there only he promoted into organizing security event as a CEO of Gujarat. From this is after 3 times.
third time in the CM, he went to PM candidate. So, that is total working structure. But when it comes to political, strategically operation or things, it is handled by Amit Shah, DL Santosh, Nadda. First, every matter is handled by DL Santosh. His one counterpart person is there, Tushar. These two persons will discuss. If they agree, then only the matter goes to Amit Shah and Nadda at a time. They both take simultaneous decisions. So when I got information about all of you, I sent the message to both to Santosh, Tushar and Amit Shah. Amit Shah is in Gujarat. Today only he went to Gujarat. He is in a public meeting there. Santosh is in Gujarat. बने रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं, जो कि मैं आपका राजनैतिक सहयोगी हूं, आई एम योर पॉलिटिकल कोलीग। आपने प्रधानमंत्री बना, मैंने उसी साल में मैंने भी चीफ मिनिस्टर बना। 8 साल से मैं आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूं इस देश में। I am also holding a constitutional position. मैं इससे पहले भी आपको सुझाव दिया था मोदी जी, आज भी देता हूं, ये कांड को रोकिए, इस प्रहार को समाप्त कीजिए, लोकतंत्र का मान्यता को मानिए। ये प्रहार ठीक नहीं है, ये आपको श्रेय नहीं देगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका स्थान खराब होगा। बिल्कुल ये सच बात मैं कह रहा हूं। आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चाहते क्या है और क्या चाहते हैं? कुछ अच्छे काम कीजिए, अच्छा नाम कमाइए, इतिहास में अच्छा जगह बनाइए। ये क्या हो रहा है? आप खुद कदम उठाइए। इस कांड में जो भी जिम्मेदार है, सारे लोगों को गिरफ्तार करवाइए, जांच पड़ताल करवाइए। मैं अनुरोध करता हूं, इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करते हुए, राज्यों के सरकारों को गिराते हुए, सब लोगों को एक खौफ में, डर में रखते हुए क्या क्या कमाना चाह रहे हैं आप? क्या पाना चाह रहे हैं? भगवान ने आपकी किस्मत में बहुत बड़ा जगह दिया आपको। आप 2 बार इस देश के, इतने महान देश के प्रधानमंत्री बने। ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देश के हित में भी, आपके हित में भी, किसी के हित में भी ये ठीक नहीं है। मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं यह बात। कोई भी इंसान 1000 साल के लिए जीने के लिए नहीं आता। हम कितने भी शक्तिमान हो, 100 साल के आगे नहीं जी सकते। क्यों इतना बुरा काम हमको करना चाहिए? क्या कारण है? इस पे एकदम रोक लगना चाहिए। दिन दहाड़े खुलेआम प्रहार कर रहे हैं आपके नाम लेके, आपके गृह मंत्री का नाम लेके। कहां तक ये सही हो सकता है? इसको लगाम लगाइए, रोकिए इसको। देश के पूरे युवाओं से, देश के छात्रों से, देश के बुद्धिजीवियों से, जो लोकतांत्रिक प्रेमी हैं, एक बार याद कीजिए उस महान पुरुष को, जयप्रकाश नारायण को। आज फिर समय आया है। आजादी का जंग जब गांधी जी लड़ रहे थे तो वो बैरेटले थे, बहुत धनवान थे, वो भी ऐश कर सकते थे अपने जिंदगी को। जवाहरलाल नेहरू भी ऐश कर सकते थे, इतने धनवान आदमी थे। भगत सिंह जी शहीद हुए इस देश के आजादी पाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कई कुर्बानियां दी। हमारा देश का परंपरा है, संस्कृति है, इतनी गरिमा है भारत का, पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में एक जगह है, एक मान्यता है हमारे देश का।
और भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के मुंह पे आप धब्बा मत लगाइए प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। आई प्रे विथ फोल्डेड हैंड्स। रोकिए इसको। एक निष्पाक्षिक काम कीजिए, जो गलत है उनको गलत बोलिए। ये काम नहीं है, ठीक नहीं है, सॉरी। हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या यही चाहा था जब आजादी की जंग लड़ रहे थे, कुर्बानियां देते हुए, सूली पे चढ़ते हुए, जलियांवाला बाग में गोलियां खाते हुए? उनका यही आशा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के पूरे बुद्धिजीवियों से, पूरे पत्रकारों से, पूरे युवा पीढ़ी से ये देश आपका है, बचा लीजिए प्लीज। हमारा तो एज हो रहा है, ये आपका देश है, आपका भविष्य का सवाल है। ऐसे कांड को देखते हुए अगर खामोश रह जाए वो भी पाप होगा, आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हर किसी से, हर बुद्धिजीवी से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्लीज राइज अबव ऑल एंड सेव डेमोक्रेसी। राइज अबव ऑल, सेव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र बचे रहे तो आगे हमारा विकास हो सकता है, हमारी स्थिति बदल सकती है। पूरे विश्व के बड़ा आर्थिक शक्तियां उभर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, भगवान का, प्रकृति का दिया हुआ। ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री अपने पद के बचाने के लिए लड़ रहे, कोई एमएलए अपने पद को बचाने के लिए लड़ रहे। ये क्या हो रहा है इस देश में? अगर हम सारे लोग इसमें बिजी हो जाए, इसमें व्यस्त हो जाए, देश का काम कौन करेगा? ये जो कांड हो रहा है ये विकास को रोक रहा है। राज्यों के सरकारों को जीने नहीं दिया जा रहा है। उनका कंसंट्रेशन विकास से हटके राजनीति में जा रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? आज ही देश बहुत बड़ी मुश्किल में है। रुपया गिर रहा है, इन्फ्लेशन थमने का नाम नहीं ले रहा है, गरीब परेशान है, हर चीज का दाम बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचियां होते हैं उसमें पूरे गिरावट आ रही है। देश का मान्यता कम हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज का पूरा रिजर्व्स गल जा रहा है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए ना। इस कांड को छोड़ के, इस प्रहार को बंद करके ध्यान उस तरफ कीजिए ताकि देश का कोई भलाई हो। मैं सारे हिंदुस्तान के न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र इस देश में जब कभी लड़खड़ाया, लोकतंत्र जब भी खतरे में पड़ा, इसको बचाने वाले सबसे अहम भूमिका निभाया था हमारे न्यायपालिका। मुझे पूर्ण विश्वास है मैं ही था न्यायपालिका के जरिए हिंदुस्तान में सारे राजनीतिक पार्टियों को सिंबल देने का स्थिति पैदा करने वाला मैं ही था। टीआरएस पार्टी ही था। जब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने सिंबल देने के लिए इनकार किया था, मैंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, वहां से मुझे न्याय मिला। मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जितने पार्टियां हैं उन लोगों को कॉमन सिंबल दिया जा रहा है। ऐसा न्यायपालिका का गरिमा है। देश के भलाई के लिए, देश के जनता के लिए कई अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं न्यायपालिका के जरिए। आज भी मैं पूरा आशा करता हूं इन ताकतों को, लोकतंत्र विरोधी, जनतंत्र विरोधी षड्यंत्र रचने वाले ताकतों पे लगाम लगाया जाए, जिस किसी प्रकार का हो। शासन के अनुसार, संविधान के अनुसार कदम उठाया जाए
और इस देश को बचा लिया जाए। बस मेरा इतना ही अनुरोध है। मैं बड़ा दुख से यह बात कह रहा हूं और यह भी कहूंगा, जान गंवाना पड़े कोई बात नहीं, इसमें हम बिल्कुल लड़ पड़ेंगे, जहां तक जाना पड़े जाएंगे। हां ठीक है, कुछ लोगों को जान देने की अगर नौबत आई तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चुप्पी नहीं साधेंगे। ये भी बात मैं खुलकर कह रहा हूं। हां बिल्कुल जल्द से जल्द जितने भी भाई पब्लिक लाइफ में है, मैं प्रयास करूंगा उन लोगों से बात करने का। एक मुहिम जरूर हम शुरू करेंगे, हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे। इस देश में लोकतंत्र बच के है, लोकतंत्र बरकरार है, उसी में सबका भलाई है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर शक्ति, हर व्यक्ति इस मुहिम में, इस आंदोलन में शामिल हो और अपनी भूमिका निभाए और भारत को बचाए। धन्यवाद भाइयों। कल परसों फिर मिलते हैं, प्लीज नो क्वेश्चंस टुडे। कल परसों मिलते हैं। आप देखिए, आप टाइम नहीं है, आपके पास टाइम कम है।